Good morning, students. So, welcome to the class. Today, we are going to read Unit 2 Ivan's Story. Ivan's Story, which is written by Catherine Applegate. Do you know, students? Catherine Applegate is an American writer whose works include fantasy and adventure novels. Her children's novel, The One and Only Ivan, has been recognized for the way in which the writer makes us think about how we treat animals and the feeling that animals have. Student, this story is about a gorilla whose name is Ivan. Ivan is telling about his life in this story. So we will see how the gorilla named Ivan after adopting the human beings. So students, ये जो स्टोरी है इवान्स स्टोरी, इसे कैथरीन एप्लीगेट ने लिखा है और ये स्टोरी एक्सट्रैक्ट की गई है उनके एक नॉवेल द वन एंड ओनली इवान से। कैथरीन एप्लीगेट ने इस स्टोरी के थ्रू बताया है कि हमें किस तरह से एनिमल्स के साथ ट्रीट करना चाहिए एंड एनिमल्स की क्या फीलिंग्स होती है उनके बारे में। इस स्टोरी में हम रीड करेंगे कि किस तरह से एक गौरेला अपनी फैमिली से दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, ह्यूमन बीइंग्स के बीच में वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा होता है। हालांकि उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है बट फिर भी वो अपनी फैमिली को मिस करता है। This story is divided into 8 parts and the 8 parts are the grunt, mud, protector, the perfect life, the end, wine, and the last is the temporary human or hunger. Okay students, so one by one we will read all the parts of this story and let me understand about the animals' feelings. Let me start. But before reading the chapter, we will read hard words. Okay, the first one is situation. Situation. The word is situation. The second one is rainforest. Rainforest. Okay. Now the third one is unsuspecting. 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 The fourth one is RIPEST. Ripest. Fifth one is PROTECTOR. Protector. Now next HUMMED. Hummed. Now next CRAMPED. Cramped.
and eighth one is ESPECIALLY, especially, and the last one is CONDITION, condition. Okay students, so let me have a start our chapter. Ivan is a gorilla who lives in a cage at a mall. He has spent 27 years either living in a human home or at the mall. The story told by Ivan is about how he has nearly forgotten his life in the wild. The book was inspired by the true story of Ivan, who lived in a similar situation for 27 years. So students, ये स्टोरी जो है इवान, ये एक गॉरिला की स्टोरी है जो एक मॉल में केज के अंदर रहता है. He has spent 27 years either living in a human home or at the mall. उसने अपनी लाइफ के 27 years या तो ह्यूमन होम में बिताए हैं या फिर एक मॉल में बिताए हैं. The story told by Ivan is about how he has nearly forgotten his life in the wild. ये जो स्टोरी है ये बताई जा रही है इवान के द्वारा, जो अपनी लगभग वाइल्ड लाइफ यानी अपने फॉरेस्ट की लाइफ को भूल चुका है. द बुक वॉज इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी ऑफ इवान. ये जो बुक है द वन एंड ओनली इवान, ये स्टोरी इवान की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है. हु लिव्ड इन अ सिमिलर सिचुएशन फॉर 27 ईयर्स, जो 27 ईयर्स तक एक सिमिलर सिचुएशन में रहता है. लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट. द ग्रंट. I was born in a place humans call Central Africa, in a dense rainforest so beautiful. No crayons could ever do it justice. यहाँ जो गॉरिल्ला है इवान, वो बताता है अपने बारे में. I was born in a place human called Central Africa. मैं वहाँ पे जन्म लिया था जिसे ह्यूमंस सेंट्रल अफ्रीका बुलाते हैं, कहते हैं. इन अ डेंस रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट इट मीन्स अ थिक फॉरेस्ट इन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड दैट गेट अ लॉट ऑफ रेन. वर्ल्ड का वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसे रेन फॉरेस्ट कहते हैं. तो ये जो इवान था गॉरिल्ला, वो सेंट्रल अफ्रीका के एक रेन फॉरेस्ट में उसने जन्म लिया था, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. इतना ब्यूटीफुल था वो प्लेस कि कोई भी कलर, किसी भी कलर के थ्रू उसे पेज पर उतारा नहीं जा सकता था. No crayons could ever do it justice. It means no matter how hard we tried, we would not be able to draw or paint the beautiful rainforest. कोई भी crayons इस beautiful place को ड्रॉ नहीं कर सकती थी, पेंट नहीं कर सकती थी. इतना ब्यूटीफुल वो प्लेस था. Gorillas do not name their newborns right away, the way humans. Gorillas के जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके जस्ट नेम नहीं रखे जाते जैसे ह्यूमन बीइंग के रखे जाते हैं. ह्यूमन बीइंग्स में जैसे ही किसी बेबी की बर्थ होती है, बॉर्न होता है, तो उनके नेम रखे जाते हैं. बट गॉरिल्ला के साथ ऐसा नहीं था. वी गेट टू नो आवर बेबीज फर्स्ट. वी वेट टू सी हिंट्स ऑफ व्हाट माइट इट बी. गॉरिल्ला सबसे पहले अपने बेबीज़ के बारे में जानते हैं. वो वेट करते हैं, देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या हिंट मिलता है, क्या बिहेवियर है उनका. When they saw how much she loved to chase me around the forest, my parents decided on my twin sister's name tag. जब मैं, when they saw, they, here they means
इवान्स पेरेंट। यहाँ पर दे का मतलब है इवान के पेरेंट। तो यहाँ जो गॉरिल्ला है इवान, वो बता रहा है व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, यानी मेरे पेरेंट्स ने जब देखा, हाउ मच सी लव्ड टू चेस मी अराउंड। सी इज़ यूज्ड फॉर इवान्स सिस्टर हुज नेम वॉज टैग। यहाँ पे शी यूज़ किया गया है इवान की सिस्टर के लिए जिसका नाम टैग था। तो जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि उसे मुझे पकड़ना, मेरा पीछा करना बहुत अच्छा लगता है फॉरेस्ट के चारों ओर घूमते हुए, तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि वो मेरी सिस्टर का नाम टैग रखेंगे। तो उन्होंने मेरे सिस्टर का नाम टैग रख दिया। ओह हाउ आई लव टू प्ले टैग विद माई सिस्टर। हियर टैग अ गेम इन विच वन प्लेयर चेजेस द अदर्स एंड ट्राइज टू टच देम। यहाँ पे टैग जो है एक गेम है जिसमें एक प्लेयर अदर्स को टच करने की कोशिश करता है, जैसा कि आप भी खेला करते हो स्टूडेंट्स। ओके, सो ओह हाउ आई लव टू प्ले टैग विद माई सिस्टर। मुझे ये गेम खेलना बहुत पसंद था अपनी सिस्टर के साथ। सी वॉज निम्बल बट वेन आई गॉट टू क्लोज सी वुड लीप ऑन टू माई अनसस्पेक्टिंग फादर। Nimble, it means able to move quickly and easily. इवान यहाँ बता रहा है कि जो मेरी सिस्टर थी वो बहुत ही क्विकली मूव करती थी, तेज़ दौड़ती थी, बहुत तेज़ दौड़ती थी। और जैसे ही वो देखती कि मैं उसके नज़दीक आ रहा हूँ, सी वुड लीप ऑन टू माई अनसस्पेक्टिंग फादर। अनसस्पेक्टिंग इट मीन्स when we do not know that something is going to happen, जब हम नहीं जानते कि कुछ होने वाला है, तो वो सडनली अपने फादर के ऊपर जंप कर जाती। Then I would join her and we would bounce on his belly, और उसके बाद मैं भी उसे ज्वाइन कर लेता और हम दोनों मिलकर अपने फादर की बेली पर बाउंस करते until he gave us the grunt, a sound that meant enough। और तब तक हम उनकी बेली पर बाउंस करते जब तक वो गुर्रा कर ये नहीं कहते बस हो गया, एनफ, काफ़ी है। नाउ द सेकेंड पार्ट, मड। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर माई पेरेंट्स फाइंड माई नेम। मेरे पेरेंट्स को मेरा नाम फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था। ऑल डे लॉन्ग एवरी डे आई मेड पिक्चर्स, आई ड्रू ऑन रॉक्स एंड बार्क एंड माई पुअर मदर्स बैक। क्योंकि मैं पूरे दिन पिक्चर्स बनाया करता था, पत्थरों पर, पेड़ के बार्क पर। बार्क इट मीन्स जो पेड़ की जो आउटर स्किन होती है उसे बार्क कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ इवान बताता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि मैं पूरे दिन पिक्चर बनाया करता था, कभी रॉक्स पर, पत्थरों पर, कभी बार्क पर, और कभी कभी मैं अपनी मदर्स के बैक पर भी बनाया करता था। आई यूज्ड द सैप फ्रॉम लीव्स। सैप इट मीन्स द लिक्विड इन अ प्लांट और ट्रीज दैट कैरीज फूड टू ऑल इट्स पार्ट। प्लांट में एक लिक्विड होता है, जूस, ट्री का जूस आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इवान था वो ऑल डे पिक्चर्स बनाया करता था और अपने पिक्चर्स में कलर फिल करने के लिए, उसे रंग देने के लिए वो ट्री लीव्स के जूस का यूज़ किया करता था। आई यूज द जूस फ्रॉम फ्रूट, और वो फ्रूट्स के जूस भी यूज़ किया करता था। बट मोस्टली आई यूज्ड मड, लेकिन मोस्टली मैं मड का यूज़ किया करता था। मड जो होती है गीली मिट्टी, ओके, मड का यूज़ किया करता था। एंड दैट इट इज़ वॉट दे कॉल्ड मी मड, और इस वजह से उन्होंने मेरा नाम मड रख दिया। टू अ ह्यूमन मड माइट नॉट साउंड लाइक मच, बट टू मी इट वॉज एवरीथिंग। एक ह्यूमन के लिए मड नाम बहुत अच्छा नहीं लगता,
सोचो स्टूडेंट्स, अगर किसी ह्यूमन बींग्स का नाम मड रख दिया जाए तो क्या उसके लिए सुटेबल होगा? नहीं। तो यहाँ इवान बताता है कि जब वो अपने पेरेंट्स के, लुक स्टूडेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली एंड डोंट बी कंफ्यूज। इवान यहाँ बता रहा है कि जब वो अपनी वाइल्ड लाइफ जी रहा था, वाइल्ड लाइफ यानी अपनी फॉरेस्ट की लाइफ, यानी कि जब वो अपने फादर मदर, अपने सिस्टर और अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहा था, अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहा था, तब उसके पेरेंट्स ने उसका नाम मड रखा था। इवान नाम उसका बाद में आया। कैसे आया इवान नाम? लेट वी सी, देखेंगे हम। ओके, तो जो इवान है यहाँ गॉरिल्ला है, वो बता रहा है कि स्टार्टिंग में जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था और फॉरेस्ट में अपनी लाइफ सरवाइव कर रहा था, बहुत ही हैप्पीली सरवाइव कर रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर और जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स के, तब उसका नाम उनके पेरेंट ने मड रखा था। क्यों रखा था मड? क्योंकि जब वो पिक्चर्स ड्रॉ करता और उसमें कलर देने के लिए वो लीव्स के जूस, फ्रूट के जूस यूज़ किया करता था, बट मोस्टली वो मड का यूज़ किया करता था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसका नाम मड रख दिया था। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए मड नाम बहुत अच्छा नहीं लगता, बट इट वॉज एवरीथिंग फॉर मी। लेकिन इवान के लिए ये सब कुछ था। क्यों? क्योंकि इस नाम ने उसे एक आइडेंटिफिकेशन दी थी, एक पहचान दी थी। जिस तरह से आपके पेरेंट आपके नाम रखते हैं और आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है सोसाइटी में, लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, सेम वॉज हियर। यहाँ भी यही थी। इवान के पेरेंट ने उसका नाम मड रखा था, जो उसके लिए सब कुछ था। उसे एक आइडेंटिफिकेशन मिल चुकी थी। सो स्टूडेंट्स, we will read till here today, and the remaining chapter we will continue next day.